Good evening, everybody. Wishing you a very happy Children's Day. So, today our session is on learning money lessons we missed as kids. So we have thoughtfully curated the session today to ensure that children, youngsters, and the entire audience can derive meaningful benefit from this session. Now, just to start with the NISM, as you all are aware, it's a capacity building initiative of SEBI. And at NISM, we work in five broad areas, which are the long term and short term academic programs, the certification exams for market intermediaries. We have e learning programs, training programs, and investor in education initiative, which is also an important leg that NISM plays in. So we have, as a part of this, many classroom and webinar education initiatives. And for today's session, we have with us Mr. Bihari Lal Deora. To introduce Mr. Deora, he is the director at Abacus Asset Management, an Indian focused asset management firm. He brings over 2 decades of experience across asset classes, managing portfolios for corporates, family offices, and university endowments. His career began at global institutions like Credit Suisse and Fidelity Investments, where he specialized in credit and equity research, portfolio strategy, and investment grade distressed analysis. At Abacus, Mr. Deora is leading the AIF, PMS, and RIA business, including the domestic as well as the onshore products, and oversees portfolio analytics, risk framework, and strategic investment planning. Mr. Deora is a top ranked chartered accountant. He's also a CFA charter holder, a CFP, CIPM, CIWM, and also a certified credit research analyst. He also serves on the board of Association of Portfolio Managers in India since 2024, and currently also he's on the board as an APME chairman, and also on the board of Association of Registered Investment Advisors, contributing to policy advocacy and industry development. So, with this, please can I request Mr. Deora to take up the session? Thank you, sir. Thank you, Rasmeet, and it's my pleasure and honor to be part of this NISM initiative on investor education, and much pleasure to kind of do the webinar on money lessons we missed as kids. Certainly, while preparing for this session, I felt that we should have more of these kind of webinars about money when we were kids, and thankfully, with NISM's outreach now, it is possible across the country. So, thank you so much for NISM for doing this. The way we have structured this session is about 30-35 minutes. I have some prepared remarks, and post that we can take some questions. Meanwhile, if you have any questions during the session also, feel free to put them in the Q&A box, and we will take them up during our slides. Now, before we sort of begin money lessons, it's not about the actual money. The numbers always begin in mind. So as long as you know what your beliefs about money are, I think the financial journey will start from there itself. As they say, money management is a unique skill for everyone. हर आदमी की जरूरतें अलग अलग है और हर आदमी का विश्वास मनी के बारे में, पैसों के बारे में अलग अलग है. सो अनलेस आप अपने नजरिए को पैसे के बारे में नहीं बदलेंगे, तब तक आपका मनी मैनेजमेंट स्किल फॉर्मुलेटेड नहीं होगा. सो मनी यूजुअली आप देखेंगे, द रिलेशनशिप विद मनी, इट रिवील्स डीपर ट्रूथ अबाउट हाउ यू सी योर सेल्फ. सो फॉर एग्जाम्पल, आज हम किसी का नेटवर्थ देखते हैं और हमें लगता है ये बहुत अच्छा आदमी है, ये बड़ा आदमी है. जिनके पास पैसा है आपको लगता है उनके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा है, जिसके पास पैसा नहीं है तो आपको लगता है उसके पास कॉन्फिडेंस कम है. लोगों को लगता है कि भाई मेरे पास ये पैसा है तो आई डिजर्व this education, or I deserve this particular skill set otherwise. So most people सी themselves और measure themselves, वो अपने आप को measure करते हैं थ्रू मनी, चाहे वो उनका कॉन्फिडेंस हो, चाहे उनका नेटवर्थ हो, चाहे उनका बिलीफ हो. एंड वाइस वर्सा, पीपल ऑल्सो काइंड ऑफ सी यू और योर नेटवर्थ एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, राइट? गुड और बैड, दैट इज हाउ आई थिंक वी हैव इवॉल्व्ड एज अ सोसाइटी. और आज हम बात करेंगे किस टाइप के बिलीफ जो आपके बचपन में फॉर्म हुए हैं अबाउट मनी. तो अक्सर हमने अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से, अपने दादा परदादों से सुना होगा कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता. मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज. व्हाट दे मेंट वाज दैट यू हैव टू वर्क हार्ड. व्हाट वी एज अ चाइल्ड अंडरस्टूड, दैट पैसा कम है हमारे पास. स्कैरसिटी माइंडसेट, यानी आप बचाइए पैसा. दूसरा आपने सुना होगा, आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.
You have to work hard for money. Now, this old narrative that money is hard to earn made us greedy. जो आज एक आम इन्वेस्टर के अंदर जो लालच आप देखते हैं, जो काफी सारे इन्वेस्टर्स, गलीबल इन्वेस्टर्स अपने ये अनऑर्गेनाइज्ड और अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं टू अर्न फास्ट और क्विक मनी, या थोड़े से पैसे के लिए दे आर रेडी टू टेक बिग बेट्स. दैट इज एविडेंट फ्रॉम दिस बिलीफ. ये जो ओल्ड नैरेटिव आपको सिखाया गया है कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको लगता है कि यदि पैसा मुझे आसानी से मिल रहा है तो मुझे ले लेना चाहिए. And that is precisely what works against you. Now, these messages were given by our parents to give us a message saying that you have to work hard, you have to manage your money. But do they still serve us today? Let us find out. Now, from a freedom or from a wealth perspective, तीन चीजों पर आपको इस समय ध्यान रखना चाहिए. एक, फ्रीडम. मनी और मनी मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग विल गिव यू फ्रीडम. आपको आजादी मिलेगी, आपको चॉइस मिलेगी. यू डोंट हैव टू रिएक्ट, यू हैव अ चॉइस. सेकेंड, इट प्रोवाइड्स यू स्टेबिलिटी. आपको स्थायिता मिलेगी, आपको सेफ्टी नेट एक मिलेगा जिसके अंदर आप ब्रीथ कर सकते हैं. नो मैटर आपका मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, नो मैटर आपके पास नौकरी है या नहीं है, नो मैटर आपका धंधा कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा, यदि आपके पास वेल्थ है तो आपको एक सेफ्टी नेट का अनुभव होगा. थर्ड इज जॉय. Money, of course, is not the answer to many things, but it is answer to a lot of things which can give you joy. So it gives you resources for what matters the most. So your true wealth might not be salary. It's about how money makes you feel. The question for you is, how much enough is enough for you? If you are earning 1 lakh rupees a month, is that enough for you? If you are earning 10 lakh rupees a month, is that enough for you? If you are earning 1 crore rupees a month, is that enough for you? And the definition keeps on changing at different points in time of your life, right? And we'll talk more about it in terms of needs versus wants once we go there. Second most important thing, that saving is self-respect. Saving is when you are trusting yourself with the money. आप किसी को पैसा उधार यदि देते हैं तो तभी देते हैं जब आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, या आप किसी से पैसा उधार मांगते हैं तो आपको ट्रस्ट कर कर पैसा देता है, राइट? सेम वे, सेविंग इज लाइक यू आर ट्रस्टिंग योरसेल्फ विथ मनी, विच मींस यू विल स्टॉप ओवर स्पेंडिंग. आप फिजूल खर्ची नहीं करेंगे टू प्रूव दैट यू आर ट्रस्टेबल. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सेविंग इजंट सेक्रीफाइस. इट्स एन एक्ट ऑफ बिलीविंग that you deserve a stable future. आपको यदि सुंदर उज्जवल भविष्य चाहिए और आप यदि उसे डिजर्व करते हैं, उस बात पर जो आपको भरोसा करना है वो सेविंग आपको सिखाता है. Let us talk a little bit about psychology. Usually हर आदमी का during his childhood there has always been a connection with money. For example, आप अपना बैंक स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते टाइम पे क्या सोचते हैं, आप क्रेडिट कार्ड से पैसे देते वक्त क्या सोचते हैं, आप जब किसी को कैश देते हैं और वो आपको छुट्टा पैसा वापस नहीं करता तो आप क्या सोचते हैं, क्या आपके दिमाग में मनी इज हार्ड टू अर्न ये अंकित है, क्या आपको गिल्टी लगता है व्हेन यू आर स्पेंडिंग मनी. दैट कनेक्शन यू टू आइडेंटिफाई. एक छोटा सा एग्जांपल अपनी पर्सनल जिंदगी से आपको बताना चाहूंगा. व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, समवेयर अराउंड 5 से 7 साल की उम्र में, मैं अपने मोहल्ले में एक पर्टिकुलर दुकान से चॉकलेट क्रेडिट पर खाया करता था. 25-50 पैसे की चॉकलेट आती थी और वो मुझे उधार हमें मिलता था और हम खा लेते थे. धीरे धीरे करके 1, 1.5, 2 महीने 3 महीने बाद वो जो टोटल उधार की राशि थी वो रफली 50 रुपए हो गई. मैं बात कर रहा हूँ रफली अराउंड 1988 1990 के पीरियड की, जब मैं काफी छोटा था. वो 50 रुपए का उधार एक दिन वो दुकानदार मुझसे मांगने के लिए खड़ा हो गया और मैं उस समय इतना डर गया कि मैं वहां सर अपने जूते चप्पल उठा के दौड़ गया, भाग गया. ऑब्वियसली दुकानदार को पता था मैं कहाँ रहता हूं, तो वो मेरे भाई की या मेरे फादर की दुकान पर गया और वहां से उसने वो पैसे अपने ले लिए. और बाद में जब मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि उसे उसके पैसे चुका दिए गए हैं. एंड दैट वाज माय कनेक्शन विद मनी, कि भाई किसी का पैसा उधार नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यदि आप उधार लोगे और आप चुका नहीं पाओगे तो आपको हमेशा दौड़ना पड़ेगा. एंड दैट माय डेफिनेशन विथ मनी
has made me spend very wisely on credit card. मेरा आज तक की वर्किंग हिस्ट्री में, लास्ट 20 साल की वर्किंग हिस्ट्री में, even though I use credit cards, I pay it before even the due date comes. मेरा कोई भी यदि बिल, यूटिलिटी बिल आता है, तो मैं उसे पहले ही जमा कर देता हूं, इवन बिफोर पेइंग फॉर द ड्यू डेट, बिकॉज मेरे दिमाग में जो कनेक्शन है कि यदि वो ड्यू डेट आ गई, जिस दिन वो मांगने खड़ा हो गया, सो आई रिमेंबर दैट शॉपकीपर, एंड दैट्स व्हाई आई पे इट ऑन टाइम. So a lot of these kind of connection can weave into your psychology, and that is what you are putting up in practice, including your career choices. So now you understand why we act the way money in which we act, because there is a psychological reason behind it. And that obviously, unfortunately, our curriculums are still evolving to understand that logic. Now, what is it that we missed, and why is it that we missed? See, स्कूल में यदि आप देखेंगे तो K-12 जो एजुकेशन है, K-12 में यूजुअली आपको साइंस सिखाया जाता है, आपको मैथ सिखाया जाता है, आपको केमिस्ट्री सिखाया जाता है, बट आपको शायद कंपाउंड इंटरेस्ट इतना डिटेल में नहीं सिखाया जाता, या क्रेडिट स्कोरिंग या रेटिंग या इन्वेस्टमेंट या इक्विटी या फिक्स्ड इनकम के बारे में इतना नहीं बताया जाता जितना आपको बाकी स्किल सेट के बारे में बताया जाता है. एंड हिस्टोरिकली ये मानना था, जो भी हमारे एकेडमिक्स थे, कि एज लॉन्ग एज यू लर्न अदर पार्ट्स ऑफ द बिजनेस और अदर थिंग्स, you will eventually know how to make money. But the question is, we have learned about economies. हमें पता है कि भाई विश्व युद्ध कब हुआ, इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो करी, कब हमारे पास रिसेशन था, कब हमारा अच्छा पीरियड चल रहा था. हम देश की सुरक्षा, देश की जीडीपी के बारे में जानते हैं, बट हमें हमारी खुद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं है. तो ये जो डिस्कनेक्ट है बिटवीन क्लासरूम लर्निंग और जो रियल वर्ल्ड मनी मैनेजमेंट, दैट हैज लेफ्ट एन एंटायर जनरेशन. And that generation is, that 2025, people who are born in that 2025 year time frame, struggling with basic financial decisions. आज की डेट में काफी स्कूलों ने अपने करिकुलम में बदलाव किया है, और वो फाइनेंस एज अ बेसिक फंक्शन अपने करिकुलम में पढ़ाते हैं, बट दिस वाज अ हिस्टोरिकल इशू. नाउ द रियल कॉस्ट ऑफ दिस इज दैट वी आर इग्नोरेंट अबाउट आवर फाइनेंशियल प्लानिंग. क्रेडिट कार्ड आप डेट देखेंगे, BNPL आपने सुना हो, बाय नाउ पे लेटर, वो काफी ग्रो कर रहा है. इंडिया में खैर आप देखेंगे तो थोड़ा, आई थिंक द बैड डेट्स आर लेस, बट अदरवाइज ग्लोबली आप देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड डेट बहुत ज्यादा है, लोग डिफॉल्ट कर देते हैं. द डेकेड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, बिकॉज हमारा माइंडसेट था कि भाई मनी, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, वी स्टार्टेड होर्डिंग मनी, वी स्टार्टेड सेविंग मनी, विच इज अ गुड थिंग, बट वी एंडेड अप स्टोरिंग मनी इन कैश, नॉट इन्वेस्टिंग इट प्रॉपरली. And hence we have missed decades of investment growth, which the country or other financialization of saving has invested in. तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन. जैसे जैसे हमारी जरूरतें बढ़ती गई, हमारी नीड्स वैसी है, बट हमारी वांट्स, हमारी लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड. वेदर इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, आप ट्रेन की बजाय उबर से ट्रैवल करेंगे. वेदर इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, आपको लेटेस्ट आईफोन एप्पल 17 चाहिए वर्सेस द बेसिक फोन. और वेदर इट इज पैनिक, जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक हो जाते हैं, लार्जली बिकॉज ऑफ दिस एकेडमिक गैप. टुडे वी आर ट्राइंग टू sort of close that gap with financial education series like these. To understand your money mindset, that is the first part of it. One, childhood programming. As long as you understand, okay, what is that incident which happened with you in life, in childhood, which has made you either fond of money or either hate money, whether made you start saving or which has made you more financial disciplined, I think your belief or your relationship will only improve. Second thing is emotional trigger. Now, fear essentially drives us to hoard cash instead of investing. तो यदि आप बहुत डरे रहेंगे तो आप कैश बचाएंगे, ऑफ कोर्स, विच इज फाइन, बट यू विल नॉट इन्वेस्ट इट, इवन दो आफ्टर इन्वेस्टिंग यू कैन गेट दैट कैश बैक इमीडिएटली, बट दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज देन योर मनी डजंट ग्रो. तीसरा, क्योंकि आप ग्रीड इज अ बिग फैक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ग्रीड विल पुश यू टू टेक रिस्की बेट्स. तो आप देख रहे हैं काफी सारे इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा खोते हैं या ऑनलाइन गेमिंग में अपना पैसा खोते हैं, बिकॉज देयर इज अ ग्रीड, राइट. एंड लास्ट इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. जो इमीडिएट आपको जो एक ग्रेटिफिकेशन होता है किसी चीज को बाय करने से या कुछ एक्सपेंस आउट करने से, दैट विल डीरेल योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ. तो आपके जो लॉन्ग टर्म गोल, जिसके लिए आप पैसा बचा रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, वो बेकार हो जाएगा या डीरेल हो जाएगा. और जब तक आप ये पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आई थिंक you will not be able to have a money mindset. So the first step is to find out what your childhood programming is. Second step is to find out your emotional trigger.
आई एम नॉट सेइंग कि आप अपना प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं या अपने इमोशनल ट्रिगर चेंज कर सकते हैं, बट यू कैन बी मोर अवेयर अबाउट दीज टू थिंग्स, एंड एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर यू कैन टेक अ डिसीजन कंसिडरिंग दोज टू थिंग्स। और फिर आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपने फ्यूचर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में। तो टिपिकली फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बजटिंग कीजिए। इन आवर ओवरऑल हाउस होल्ड बजट डिवाइडेड इनटू नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स। अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव सेड कि पहले आप सेविंग कीजिए, बाद में आप एक्सपेंस आउट कीजिए। जो बचता है उसको सेविंग नहीं, जो बचता है उसको खर्चा कीजिए, राइट। सो एक आपकी नीड्स है, आपकी हाउसिंग डिमांड्स हैं, आपकी ग्रोसरीज हैं, आपकी यूटिलिटीज हैं, इंश्योरेंस है, आपके कुछ ईएमआईज हैं। ये एसेंशियल है जिनके बिना आप जी नहीं सकते। आपका ट्रेन का पास इज एसेंशियल, उसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते, राइट। सो ट्रेन का पास आपकी जरूरत है, उबर आपकी वांट है, राइट। घर का खाना आपकी जरूरत है, होटल का खाना वांट है। सो डिफरेंशिएट बिटवीन नीड एंड वांट। तो डाइनिंग आउट, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, ट्रैवल, हॉबीज, ये एक्स्ट्राज हैं जो डेफिनेटली आपकी लाइफ को एंजॉयबल बना सकते हैं, बट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली नेसेसरी। दे विल बिकम नेसेसरी एट सम पॉइंट टाइम इन लाइफ, बट नॉट एट द एज व्हेन यू आर सेविंग। सेकंड इज इमरजेंसी फंड। एवरेज टिपिकली 6 से 7 महीने का आपका जो एक्सपेंस है, जो नीड्स है, उसे इमरजेंसी फंड्स में रखिए। रिटायरमेंट अकाउंट, चाहे आप न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस करें, चाहे आप पीपीएफ करें, चाहे और कोई रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट करें, प्लीज सेव फॉर योर रिटायरमेंट। एंड थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। वॉट एवर इज नॉट इमरजेंसी एंड नॉट रिटायरमेंट, invest it for future goals. Those goals could be education, could be child marriage, could be buying home, buying everything else, etc., etc. Right? आज के डेट में बैंकिंग हैज इवॉल्व्ड। आपके पास ऑटोमेटिक ट्रांसफर या स्वीप इन स्वीप आउट की सुविधा अवेलेबल है, जिससे आप इमीडिएटली अपनी सेविंग्स जो है, जिस दिन आपका सैलरी या आपका बोनस या आपका प्रॉफिट जनरेट होता है, उसी दिन आप उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं इन सेविंग इंस्ट्रूमेंट। लाइक आई सेड, इमोशंस ड्राइव एवरी डॉलर। आपने देखा होगा कुछ लोग जब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं तो बहुत ज्यादा खाते हैं, या स्ट्रेसफुल होते हैं तो ऑनलाइन बाइंग करते हैं, या स्ट्रेसफुल होते हैं तो दे एंड अप डूइंग समथिंग विच टू एस्केप देयर बोर्डम, राइट। या वो सोशल कंपैरिजन करने लगते हैं कि भाई गुप्ता साहब का लड़का यहाँ यहाँ घूम के आया, या गुप्ता साहब यहाँ पे छुट्टी मनाने गए, राइट। सो जो रिटेल थेरेपी है, जो लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, परचेज करने जाते हैं, इट इज नॉट अबाउट इमोशनल नीड। सो इम्पल्स स्पेंडिंग जो है, जस्ट बिकॉज समबडी एल्स डिड इट, आपको भी करना है, वो प्लीज मत कीजिए, राइट। योर अवेयरनेस कि वेदर ये कपड़े की आपको या ये नई जो आप चीज खरीद रहे हैं उसकी आपको जरूरत है कि नहीं है, दैट रिकॉग्निशन इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। तो यदि आप वो ट्रिगर को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, कब आपको नया कुछ बाय करने का मन होता है, कब आपको ये स्पेंडिंग करने का मन होता है, इफ यू आइडेंटिफाई दैट ट्रिगर, यू कैन अवॉइड दैट ट्रांजेक्शन इफ इट इज अननेसेसरी। जरूरत है, खर्चा कीजिए, जरूरत नहीं है, अवॉइड कीजिए। सो फाइंड आउट दैट इमोशन। आपका कोई तो एक इमोशन होगा जो आपको ड्राइव करता है वो रुपया स्पेंड करने के लिए अननेसेसरली। सेकंड, जैसे मैंने आपको बोला, इमरजेंसी फंड आपको बनाना चाहिए, तो सेफ्टी फर्स्ट, स्ट्रेटेजी सेकंड, राइट। सो आप टिपिकली आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो मैंडेटरी हैं, जैसे आपको ईएमआई भरना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको घर पे ग्रोसरी लानी है, ये जो सेफ्टी नेट है, इसे टिपिकली इमरजेंसी फंड में आप स्टोर कीजिए, विच कुड बी अ लिक्विड और अ फिक्स्ड इनकम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। बाकी का रुपया जो है, जो इमरजेंसी फंड के अलावा है, that is where basically you try to invest. So this will avoid any kind of financial stress, this will avoid any kind of panic decision, right? जब भी आप डर के माहौल में जिएंगे, आप ऑब्वियसली appropriate financial decision नहीं ले पाएंगे। तो ऑब्वियसली connect with the investment advisor or a regulated entity to help you out with that. टिपिकली सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग आप देखेंगे, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। यदि आपका एवरेज इन्फ्लेशन 2.5% है, आपका मार्केट रिटर्न यदि 10% है, तो आपका रियल ग्रोथ जो आपका वेल्थ बिल्डिंग हो रहा है वो टिपिकली 7.5% मैथमेटिकली, कैलकुलेशन वाइज लिटिल बिट हियर एंड देयर, बट जनरली स्पीकिंग। सो यदि आप 25 की एज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, आप 500 रुपए पर महीने का यदि आप डाल रहे हैं और आपको 8% हर साल का यदि रिटर्न मिल रहा है, तो रफली आपके पास एक्स नंबर विल बी देयर बाय एज ऑफ 65। यदि आप 35 पे इन्वेस्ट करना चालू करेंगे तो दैट नंबर वुड बी लोअर। तो जो आप 10 साल का डिफरेंस देखेंगे इन्वेस्टमेंट डिले, दैट इटसेल्फ विल कॉस्ट यू हाफ ऑफ व्हाट यू आर अबाउट टू अर्न, राइट। सो
सिंपल स्टार्टर ऑप्शंस हैं. देयर आर इंडेक्स फंड्स अवेलेबल इन इंडिया, देयर आर ईटीएफ्स अवेलेबल इन इंडिया, देयर आर इनफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल in India. You can target SIPs. If you have more money, you can target products like PMS or AIF, depending on your risk appetite. But there are enough products available depending on your risk appetite and risk profiling, which you can use for saving versus investing. राइट. दूसरा क्रेडिट वर्सेस डेट जो आप देखेंगे तो एक एनी टाइम यू टेक अ क्रेडिट लोन और अदरवाइज, टिपिकली आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, जो कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री, आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन, लेंथ ऑफ द हिस्ट्री पे ऊपर बेस रहता है. तो यदि आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं तो पे इट टाइमली. यस, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है, लेकिन यदि आपने देखा होगा मोस्ट क्रेडिट कार्ड्स हैव एवरेज इंटरेस्ट रेट बिटवीन 36 to 45% अ ईयर. ठीक है, आपको ये पेपर पे दिख रहा है कि भैया 83% अ मंथ, बट इज नॉट द 3% अ मंथ. यदि आप उसको एनुलाइज करेंगे तो कम से कम भी 36 से 45% ईयरली आपसे चार्ज कर रहे हैं. तो विद इन 2 साल आपका, यदि आपने नहीं चुकाया है, तो डबल अमाउंट हो जाएगा. सो टिपिकली क्रेडिट कार्ड स्ट्रेटजी है, तो बहुत ही वाइजली आप चूज कीजिए. दूसरा, गुड और बैड डेट में डिफरेंशिएट कीजिए. यदि आपने होम लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इट इज अ गुड डेट, बिकॉज आपने किसी एसेट को बढ़ाने के लिए लिया, आपने किसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए लिया, चाहे वो आपने अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो एजुकेशन में या घर में इन्वेस्ट कर रहे हो. बैड इन्वेस्टमेंट्स विल ड्रेन वेल्थ. बैड इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर लोन. आपको एक आईफोन खरीदना है, आपने उसे ईएमआई पर ले लिया. लग्जरी परचेज, लग्जरी हॉलीडे, ये सब, या कार, ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है. तो डिसाइड कीजिए कि आपने जो लोन लिया है वो अप्रिशिएटिंग एसेट है कि डेप्रिशिएटिंग एसेट है. राइट. एंड दैट विल डिफाइन कि आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. तो डेट और क्रेडिट, ये हर इंसान को समझना बहुत जरूरी है फ्रॉम अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन परस्पेक्टिव. बिल्डिंग योर सेफ्टी नेट हमने ऑलरेडी बात की. तो अपार्ट फ्रॉम सेविंग, जो कि 3 से 6 महीने का यूजुअली लोग मेंटेन करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए और एक डिसेबिलिटी कवरेज लीजिए. क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए? बिकॉज आप यदि अपने घर के की मैन है, की पर्सन है, आप जो है आपके कमाई से घर चल रहा है, और यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उतना पैसा जो है, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग फूड ऑन द टेबल. तो ऐसे केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस कैन सेव यू फ्रॉम कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ कॉस्ट. हेल्थ कॉस्ट इज वेरी हाई इन इंडिया, तो प्लीज इन्वेस्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस. सेकेंड इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस. इन अ फैमिली ऑफ 4, यदि एक आदमी काम कर रहा है और उसके बेसिस पे पूरी फैमिली चल रही है, इन केस दैट पर्सन इज नॉट देयर, द फैमिली लूजेस आउट ऑन दैट अर्निंग. तो टिपिकली टर्म इंश्योरेंस, जो कि आपके लिए चीपर भी रहेगा, प्लस इट विल अलाउ कि यदि आप नहीं हैं, तो यस, आपकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, बट आप जितना कमाते थे उसके अगेंस्ट में जितना आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है, दैट कैन गिव योर फैमिली सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एंड थर्ड इज कि आपको कुछ नहीं हुआ बट यू आर अनेबल टू वर्क, यू आर डिसेबल्ड और यू आर डिफरेंटली एबल्ड. इन दैट केस you should have insurance which can replace your income if the injury permits you from doing more. So apart from emergency fund, focus on health, term, disability. These are mandatory. Yes, सब कुछ भगवान भरोसे चलता है. Yes, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, फिर भी आई थिंक एक इंश्योरेंस लेना समझदारी की बात रहेगी. बहुत सारे लोगों को अपना बैंक स्टेटमेंट खोलने में डर लगता है, बिकॉज उन्हें लगता है कि भाई मेरे पास तो बैलेंस ही नहीं है, या उन्हें गिल्टी लगता है कि भाई मैं कैसे ये स्पेंड करूं, बिकॉज आप स्टक हैं इन द मनी इज हार्ड टू अर्न परस्पेक्टिव. सो फॉरगेट अबाउट योर इमोशनल बायसेस एंड थिंक अबाउट हाउ यू कैन फाइनेंशियलाइज दैट सेविंग टू इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर. एक कॉन्सेप्ट आपने शायद पढ़ा हो, सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट की यदि बात करें तो 10,000 रुपए यदि आपने इन्वेस्ट किया है, 10% यदि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 साल में आपको 3,000 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका टोटल अमाउंट होगा 13,000. तो आपने जो पहले साल में 1,000 रुपए कमाए, दूसरे साल में भी आप 1,000 रुपए कमाएंगे, तीसरे साल में भी आपको इंटरेस्ट 1,000 रुपए ही मिलेगा. ये सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट है. और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट की यदि बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. ठीक है, तो एक छोटा एग्जांपल, यदि आपने 10,000 रुपए 5% के ब्याज पर इन्वेस्ट किए, तो आपको फर्स्ट ईयर में 500 रुपए का ब्याज मिलेगा, विच इज 10,500, 10,500. सेकेंड ईयर में आपको 10,500 पे 5% मिलेगा, विच इज 525. तो आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 11,025. थर्ड ईयर में आपको उसके ऊपर मिलेगा. सो टिपिकली कंपाउंड इंटरेस्ट इज व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, एंड दैट द सेम कॉन्सेप्ट गोज विथ इक्विटी. तो आप जब कहा जाता है कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड हो रहा है, तो दैट मींस के
जितनी ज्यादा आपकी रेट ऑफ रिटर्न हायर, उतना ज्यादा आपका कंपाउंडिंग हायर होगा. एंड विल टॉक अबाउट सम रूल्स ऑफ कंपाउंडिंग समवेयर लेटर इन द प्रेजेंटेशन. सो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यदि आपने 10,000 किया तो पहले साल 11,000, दूसरे साल 12,100, तीसरे साल 13,310. ये कंपाउंडिंग का मैजिक है कि आपका जो पैसा बन रहा है वो भी आपके लिए अर्न कर रहा है. सो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप समझ गए. स्टार्टिंग अर्ली इज द बिग थिंग, बिकॉज मनी मेक्स मनी. जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट. So a famous quote says that the best time to invest start was yesterday and the second best time is today. यदि आज तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं, आज वो समय है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं. तो कंपाउंडिंग यदि मैं बात करूं, तो यदि आप डिपेंडिंग ऑन आप कौन से साल में शुरू करते हैं, आपका जो कॉर्पस है, ये जो आपको फाइनल अमाउंट है, वो बहुत कम ग्रो करेगा, बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, बिकॉज आपका कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है. तो जो हमने एक पहले एग्जांपल दिया था कि भाई आप 500 रुपए 8% के हिसाब से, एनुअल रिटर्न के हिसाब से करते हैं, और यदि आप 25 की उम्र में चालू करते हैं तो आपका अमाउंट एक्स होगा, और यदि आप 35 की उम्र में चालू करते हो तो आपका अमाउंट वाई होगा. एंड दैट डिफरेंस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, सेइंग दैट आपके पैसे को टाइम चाहिए टू वर्क, और जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक सॉर्ट ऑफ रहेगा. आप किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं. आई थिंक इन म्यूचुअल फंड्स people can invest as low as 1,000 rupees a month, or there are products which require much more higher, right? So it is not कि भाई investing is not only for the rich, investing is for everyone, right? 1,000 रुपए भी यदि कंपाउंडिंग उतना हो रहा है, और 10,000 रुपए भी उतना ही होगा, यदि रेट ऑफ रिटर्न यदि आप सेम मानेंगे, तो दो बोथ मनी विल ग्रो एट दैट पॉइंट टाइम, राइट? कुछ लोग सोचते हैं कि भाई आई विल स्टार्ट द इन्वेस्टिंग व्हेन आई अर्न मोर. देयर इज नो राइट टाइम टू काइंड ऑफ स्टार्ट इन्वेस्टिंग. आपके पास कम पैसे हैं, आप कम इन्वेस्ट कीजिए. आपके पास जितने ज्यादा पैसे हैं, आप ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए. कुछ लोगों को लगता है आई नीड टू पिक विनिंग स्टॉक्स, राइट? डोंट think about doing individual stocks yourself, because you may not have that understanding of the market yourself. There are enough and more professional fund managers or funds which are out there which can do it for you at a fraction of a cost without you sort of looking it. So जिसका काम उसी को साजे, सो कृपया करके यदि आप इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन खुद करना चाहते हैं, अनलेस यू आर क्वालिफाइड, कैपेबल एंड हैव पोटेंशियल, प्लीज डोंट डू इट. गिव इट टू समवन हु नोज दिस एंड हु डज दिस डे इन डे आउट, राइट? जैसे आपको हमारे समाज में हर काम डिवाइडेड है, राइट? हर आदमी का एक स्किल सेट है. आपको यदि कुछ ठीक कराना तो पर्टिकुलर मैकेनिक के पास जाते हैं. आपको कुछ यदि पढ़ाई करनी है तो आप पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाते हैं. तो जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो आप अपने आप क्यों करना चाहते हैं, तभी भी आप किसी एक्सपर्ट के पास प्लीज जाइए. सो स्टार्ट अर्ली. आई टोल्ड यू कि भाई आप जल्दी चालू करेंगे तो ज्यादा पैसा बनेगा, लेट चालू करेंगे तो कम पैसा बनेगा. बट द गुड पार्ट इज यू कैन स्टार्ट. छोटा का एग्जांपल है, यदि आप एक बाइक खरीदना चाहते हैं और आप उसके लिए सेविंग करना चाहते हैं, और डिपेंडिंग ऑन आप कितने टाइम तक और कब सेविंग स्टार्ट करेंगे, आपका डिफरेंस ऑफ सेविंग का रेट जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगा. तो यदि आप आज सेविंग करना शुरू करेंगे, और यदि आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, तो 3 साल का सेविंग के लिए आप 2,500 रुपए के हिसाब से, 7% दी मैं इंटरेस्ट रेट मानू तो 2,500 रुपए के हिसाब से आप सेव कर सकते हैं. एक साल बाद चालू करेंगे तो दैट अमाउंट विल बिकम 3,894 रुपए. उसके अगले साल 2 साल बाद करेंगे तो दैट अमाउंट विल बिकम 8,000. तो आप देखेंगे कि द डिले कॉस्ट, आपने एक साल लेट उसके लिए सेव करना शुरू किया तो आपका कॉस्ट कितना बढ़ गया, ऑलमोस्ट 50%. आपने 2 साल लेट किया तो आपका कॉस्ट कितना बढ़ गया, 50%. यदि आपको 1,00,000 रुपए की बाइक 3 साल बाद लेनी थी, तो आज 2,500 रुपए महीने का सेविंग आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, लेकिन 2 साल बाद 8,000 रुपए महीने पर का सेविंग आपके लिए शायद बड़ा होगा. एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कि जितना जल्दी आप सेव करना चालू करेंगे, उतना जल्दी आपकी मनी विल ग्रो. सो फॉर्मूला सिंपल है. एक डबलिंग फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, रूल ऑफ 72. तो यदि आपको पता करना है कि आपका पैसा कितने सालों में डबल होगा, तो जो भी एसेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट करने की देख रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहे हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे वो इक्विटी फंड हो, चाहे वो कोई और प्रोडक्ट हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ 72, द डबलिंग फॉर्मूला. तो जो भी आपकी रिटर्न रेट है 72 से उसे डिवाइड कीजिए, और जो डिफरेंस आएगा दैट इज द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें आपका डबल होगा. तो यदि आप किसी चीज को देख रहे हैं जो कि 10% रिटर्न आपको देता है, तो 72 डिवाइड बाई 10, तो 7 साल और 7.2 ईयर्स में ये डबल हो जाएगा. यदि आप अपने पैसे की बात कर रहे हैं तो 1,00,000 कैन बिकम 2,00,000 रुपए इन अबाउट 7 ईयर्स. ये आपका 10% और 72, रूल ऑफ 72 की हम बात करें. यदि आपका रिटर्न 12% है तो वो 6 साल में डबल हो जाएगा. यदि आपका रिटर्न 24% है तो वो 3 साल में डबल हो जाएगा. सो डिसिप्लिन विल बीट इंटेलिजेंस.
in mutual funds, there is a concept called systematic investment plan, which is nothing but a disciplined way of doing monthly investing. Automate everything. जितना ज्यादा आप ऑटोमेट करेंगे उतना ज्यादा आई थिंक यू विल रिमूव इमोशंस फ्रॉम द इक्वेशन. तो आपके लिए एक यू नो इजी प्रोसेस हो जाएगा. सिमिलरली सेपरेट अकाउंट्स, अपने स्पेंडिंग मनी के अकाउंट को सेपरेट रखिए, अपने इन्वेस्टिंग अकाउंट को सेपरेट रखिए. एंड बिलीव ऑन कंपाउंडिंग. सम पीपल से कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट ट्रूली इज इफ यू बिलीव इट. राइट. तो जैसे मैंने आपको 72 का रूल बताया जो कि डबलिंग के लिए काम आता है, वैसे ही रूल ऑफ 114 है जो ट्रिपलिंग के लिए काम आता है. वैसे ही रूल ऑफ 144 है जो क्वाड्रपलिंग के लिए काम आता है. तो यदि आप कोई चीज इन्वेस्ट कर रहे हो, 10% का रिटर्न है, 14 साल में वो पैसा आपका 4 गुना हो जाएगा. तो यदि आप 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट सेव करना चालू करते हैं और आपने 60 साल की उम्र तक सेव किया, यानी आपने 40 साल सेव किया, तो वो पैसा हर 14 साल में 4 गुना होगा. तो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है तो 14 साल बाद वो 400 हो जाएगा, उसके और 14 साल बाद वो 1600 हो जाएगा, और उसके और 14 साल बाद वो 1600 इंटू 4 जो कि 6400 हो जाएगा. तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा जब तक आप उसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन. एंड दैट इज वाई कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स. जितना आप पेशेंस, जितना आप डिसिप्लिन्ड वे में वेल्थ को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आई थिंक यू विल बेनिफिट आउट ऑफ इट. राइट. छोटे से चालू करिए, जितना छोटा हो, 500, 1000, जैसे भी आपके पास है, जो भी आपके पास इंक्रीमेंटल मनी है, सेव कीजिए. ठीक है. देर आर सम रूल्स, 100 माइनस एज रूल. यदि आप 25 ईयर्स के ओल्ड हैं तो यू कैन टेक मोर रिस्क, तो स्टॉक्स में ज्यादा डालिए या म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा डालिए, बाकी आप फिक्स्ड इनकम में रखिए. दैट कैन बी ट्वीक्ड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंडीशन. बट यू डोंट नीड टू बी रिच टू इन्वेस्ट, बट यू नीड टू इन्वेस्ट टू बी रिच. आपको अमीर होना जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन अमीर बनने के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है. ये लॉजिक यदि आप याद रखेंगे तो कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा. सो इमरजेंसी फंड की हमने बात की, डेट क्रेडिट की हमने बात की, टैक्सेस जो आपको ऑलरेडी पता है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं आपका टैक्स रेट क्या है उस पर फोकस कीजिए. रिटायरमेंट के ऊपर ऑब्वियसली फोकस कीजिए, और हेल्थ इंश्योरेंस इज द लास्ट काइंड ऑफ पिलर जिसके आप ऊपर आप सॉर्ट ऑफ फोकस कर सकते हैं. तो रूल ऑफ 72, रूल ऑफ 114, रूल ऑफ 144, 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट रूल, क्या आप मिनिमम 10% बचाइए, 10% से ज्यादा इंक्रीज करते जाइए हर साल. 100 माइनस एज रूल फॉर एलोकेशंस, टिपिकली मोस्ट पीपल फॉलो. इमरजेंसी फंड रूल मैंने आपको बताया, और एक विड्रॉल रेट इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल रिटायरमेंट इनकम यदि वो फिक्स करता है. दूसरा, आप सब लोगों ने इन्फ्लेशन के बारे में सुना होगा. मैं एक 2-4 स्लाइड सेव करूंगा. तो इन्फ्लेशन क्या है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन इज व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्लोली राइज ओवर टाइम, मेकिंग योर मनी बाय लेस देन बिफोर. आपने कोई चीज 1 साल पहले खरीदी, वो 10,000 रुपए की थी, आज वो चीज 11,000 रुपए की है. दैट मीन्स वो चीज का प्राइस 10% बढ़ गया है, या वो इन्फ्लेशन 10% बढ़ गया है. राइट. तो आप जिस रेट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आपका इन्फ्लेशन उस इन्वेस्टमेंट रिटर्न से ज्यादा है, तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, आपका पैसा डिग्रो हो रहा है. एंड वाइस वर्सा, यदि आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो इन्फ्लेशन के बराबर ही आपको रिटर्न दे रहा है, तो आपका पैसा नहीं बढ़ेगा. सो टेक एन एग्जांपल, यदि आपको कोई फिक्स डिपॉजिट 7% एनुअली साल का रिटर्न दे रहा है, और आपका इन्फ्लेशन इन द कंट्री इज 5%, तो आपका रियल पैसा, जो रियल रिटर्न है, वो सिर्फ 2% है. तो ऐसे equity is probably the only instrument which has a capability to beat inflation over a longer period of time. Yes, other asset classes would also be there, like metals and so on and so forth. But generally speaking, equity worldwide has a proven track record of beating inflation versus fixed income. Right? So inflation. Now, inflation के बारे में सबने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में और एटलीस्ट वर्ल्ड वाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं? एक इन्फ्लेशन है जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन. अदर इन्फ्लेशन इज व्हाट इज एक्चुअली इंपैक्टिंग यू. राइट. तो इन्फ्लेशन आपको कैसे इंपैक्ट करता है? तो ऑब्वियसली आपका परचेजिंग पावर कम हो जाता है, आपका सेविंग इरोजन हो जाता है, आपको इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा चाहिए, और आपकी लिविंग कॉस्ट हायर है. बट अंडरस्टैंड दैट इन इंडिया द एजुकेशन इन्फ्लेशन इज डिफरेंट. आपकी स्कूल की फीस हर साल 15% से बढ़ रही है, आपके मेडिकल कॉस्ट हर साल 10% से बढ़ रहे हैं. हो सकता है आपका इन्फ्लेशन स्टिल 2% से ही बढ़ रहा हो, लेकिन जो आपके बाकी एक्सपेंसेस हैं, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, दे आर ग्रोइंग फास्टर देन द CPI और WPI विच यू रीड इन द पेपर्स टुडे. तो आप जब एक इन्वेस्टमेंट करेंगे,
तो सिंपली 2%, 3%, 5% इन्फ्लेशन को कंसिडर करके इन्वेस्ट मत कीजिए, बल्कि गोल स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कंसिडर कीजिए। आप एजुकेशन फंड के लिए पैसा बचा रहे, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा बचा रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन सॉर्ट ऑफ कंसिडर कीजिए रादर देन दिस थिंग। यदि आप मेडिकल के लिए पैसा बचा रहे हैं तो वो उसका इन्फ्लेशन कंसिडर कीजिए। आप सब्जियों के लिए पैसे नहीं बचा रहे तक जो कि आप 2% इन्फ्लेशन सॉर्ट ऑफ अज्यूम करेंगे टू दैट एक्सटेंट। सो इन्फ्लेशन इज अ बिग टास्क, एंड प्लीज अंडरस्टैंड योर इन्फ्लेशन, आपको कौन सा इन्फ्लेशन इंपैक्ट करता है, प्लीज उसको देखिए। कोर इन्फ्लेशन इंडिया में बात करें, हिस्टोरिकली हैज बीन 4 to 6%, करंटली रफली अराउंड 2%, 2 to 3%। एजुकेशन की बात करें तो 8 से 10% है, हेल्थ केयर की बात करें तो 10 से 12% है, और लाइफस्टाइल क्रीप की बात करें तो 6 से 9% है। तो आप जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आपको उतना जो है इंक्रीमेंटल सेविंग करना पड़ेगा टू कोप अप विद द इन्फ्लेशन, right? And that is what is sort of required by what when I call it personal inflation. So personal inflation एक concept है जो आपको याद रखना चाहिए। एंड फ्रॉम एफडी ट्रैप, यदि आप 9%, 10% आपका एजुकेशन इन्फ्लेशन है और आप एक फिक्स डिपॉजिट्स में बच्चे के एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं जो कि आपको 6 या 7% दे रहा है, तो शायद आपका रिटर्न उसमें उतना नहीं बनेगा और आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे। सो टू दैट एक्सटेंट प्लीज नोट इन्फ्लेशन टू फ्रॉम दैट एंगल। सो एवरी इन्वेस्टमेंट हैज 3 फैक्टर्स: सेफ्टी, लिक्विडिटी, ग्रोथ। सो किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा डालने के पहले कृपया उसकी सेफ्टी, उसकी लिक्विडिटी और उसकी ग्रोथ के बारे में जानकारी ले ले, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। प्लीज नोट and deal with only regulated products and not with unregulated or people who can give you promises of high-fi or guaranteed returns. There is no guarantee in markets, and please look at these factors before going there. थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप लोग सभी का ये सेशन सुनने के लिए। और अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आपके यदि कोई सवाल जवाब हैं, प्लीज put in these questions in the Q&A box and we can take it up from there. So there are some questions which are already there in the screen. I will start taking them. कुछ सवाल I think already हैं। Meanwhile, I request others to put in their questions and go from there. So एक क्वेश्चन है डिफॉल्ट के बारे में। तो डिफॉल्ट, सो बाय डेफिनेशन यदि आप सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर की बात करेंगे तो द मोमेंट आपका यदि पेमेंट डिलेड है, इट इज कंसिडर्ड एज अ डिफॉल्ट एंड इट विल इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर। यदि आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने में यदि 5 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की देरी भी की है तो इट विल बी ट्रीटेड एज डिफॉल्ट और आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो खराब हो जाएगी और आपका सिबिल स्कोर कम हो जाएगा। सो एनीथिंग विच इज नॉट ऑन टाइम इज अ डिफॉल्ट। सो लेट्स लुक एट इट दैट वे। तो जितना भी हो सके अपने जो डेट्स हैं उनको टाइम पर आई थिंक सर्विस कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन इज कि भाई 50-30-20 रूल, इज इट एप्लीकेबल इन टूडेज लाइफ? इज 20% ग्रोथ इनफ? इट सर्टनली डिपेंड्स ऑन वेयर व्हाट यू आर थिंकिंग एंड वेयर यू आर। सर्टेन प्लेसेस आप देखेंगे ऑन एन एवरेज 30% जो है, 30 से 35% आपकी यदि आप अपने घर खरीदा तो ईएमआई और होम लोन विल बी रिक्वायर्ड। 30 से 35% इज व्हाट आई थिंक यू कैन स्पेंड ऑन ग्रोसरीज और यूटिलिटीज और डेली डे टू डे थिंग्स, और जो भी बचता है वो आई थिंक सेविंग्स है। तो सेविंग इज अ नंबर विच इज आफ्टर द बेसिक एमिनिटीज। यदि आपका खुद का घर है तो शायद आपको ज्यादा पैसे बच रहे हो तो प्लीज सेव 30%। आप 40%, 50% भी सेव कर सकते हैं। यदि आपका अपने खर्चों पर कंट्रोल है, प्लीज सेव मोर। सो 50-30 रूल इज अ आइडियल सिचुएशन बट नॉट नेसेसरी, इट्स अ मिनिमम सिचुएशन। 20% तो मिनिमम आपको सेव करना चाहिए। इफ यू कैन डू मोर, नथिंग लाइक इट। सो कुछ हमारे क्लाइंट्स का आप देखेंगे तो उनका रूल है कि जैसे हर साल उनकी सैलरी बढ़ती है तो जो इंक्रीमेंटल सैलरी बढ़ती है वो सीधा आई थिंक वो इन्वेस्टमेंट्स में डाल देते हैं। तो यदि आपकी लास्ट ईयर सैलरी 10,000 रुपए थी और ये साल यदि 15,000 रुपए है तो 5,000 रुपए आई थिंक वो एडिशनल सेविंग में डाल देते हैं, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक हेल्प्स देम ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So 50-30-20 is not a standard rule, but it is a minimum. If you can do more, it will be good for you. मार्केट एप्रिसिएशन एक सवाल है, व्हाट इज मार्केट एप्रिसिएशन? तो मार्केट एप्रिसिएशन की बात करें तो मार्केट एप्रिसिएशन इज कि आपका जिस भी इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल आपने इक्विटी मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड्स पार्टिसिपेट किया है तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल आपने कोई घर खरीदा 10 लाख रुपए में और आज उसकी वैल्यू 12 लाख है, तो हम बोलते हैं कि भैया दिस एसेट हैज बिकम एप्रिशिएटेड, इसका वैल्यू बढ़ गया है। और डेप्रिशिएटिंग एसेट मतलब जैसे आपने कोई कार खरीदी, 10 लाख रुपए की कार खरीदी, यदि आप उसे सेकेंड डे भी बेचने जाएंगे तो आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा, आपको उसका
8 लाख मिलेगा या 7 लाख मिलेगा, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो उन एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए जो कि एप्रिशिएट हो रहे हैं, उन एसेट्स के लिए लोन लीजिए जो कि एप्रिशिएट हो रहे हैं, ना कि उन एसेट्स के लिए जो कि डेप्रिशिएट हो रहे हैं। बिकॉज उसमें आपको डबल वहमी है, आपका एसेट जिसमें आपने इन्वेस्ट किया वो भी आपका नीचे जा रहा है, और आप ऑब्वियसली ईएमआई या जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो तो भर ही रहे हैं। अ, कुछ लोगों ने पूछा है एमएफ, पीएमएस और म्यूचुअल फंड। सो एमएफ का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड, इट्स अ सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट। पीएमएस का फुल फॉर्म है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इट्स अ सेबी रेगुलेटेड सर्विस। एंड एआईएफ का फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, अगेन इट्स अ सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट। डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क एपेटाइट, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट फीचर्स और डिफरेंट अवेलेबिलिटी है, विच यू कैन लर्न मोर। एक क्वेश्चन है एसआईपी के बारे में। एसआईपी, यस, यदि आपके बच्चे छोटे हैं, आप बच्चों के नाम पर एज अ माइनर भी एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी के लिए कोई एज का क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आप 18 साल के ऊपर हैं और आपके पास यदि पैन कार्ड है तो आप खुद के नाम पर भी एसआईपी कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी फॉर ऑल पेरेंट्स दे कैन डू एसआईपी इन योर नेम एज अ गार्जियन। इन्फ्लेशन के बारे में एक क्वेश्चन है विच आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इन्फ्लेशन, अलग अलग चीजों का अलग अलग इन्फ्लेशन है, और आप उस इन्फ्लेशन के हिसाब से अपनी सेविंग सॉर्ट ऑफ कीजिए। लाइफ एन्यूटी प्लान के बारे में एक क्वेश्चन है। लाइफ एन्यूटी प्लान इज पार्ट ऑफ इंश्योरेंस स्कीम। तो टिपिकली आप एक लमसम पैसा या किसी कुछ पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी को या इंस्टॉलमेंट में आज इन्वेस्ट करेंगे, वो कंपनी उस पैसे को आगे कहीं इन्वेस्ट करेगी, और एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम आफ्टर योर लाइफ, विच मीन्स एट द एज ऑफ रिटायरमेंट समथिंग, दे विल गिव यू some sort of fixed payout at that point in time. Typically, annuity plans का returns जो है, because they invest in fixed income instrument, शायद थोड़ा कम हो सकता है। तो प्लीज लुक कि आप जो भी एन्युटी प्लान आप ले रहे हैं वो आपके खर्चे जो है पूरे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, अदरवाइज यू विल एंड अप टेकिंग अ प्लान एंड इट विल नॉट सफाइस योर एक्सपेंसेस टू दैट एक्सटेंट। एक क्वेश्चन है, कैन यू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट विथ रुपीज 100? हर प्रोडक्ट का एक अलग मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, एंड एज लॉन्ग एज यू फॉलो दैट क्राइटेरिया आई थिंक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट, नो मैटर बिग स्मॉल और दिस थिंग, you should start the habit of investing as soon as it is sort of possible to that extent. एक क्वेश्चन है, विच इन्वेस्टमेंट्स यू प्रिफर, मोर स्टॉक और एसआईपी? यदि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, और पैसा किसी गोल के लिए सेव कर रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा किसी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए। यदि आपको नहीं पता है कि कौन सा फंड अच्छा है, तो प्लीज रीच आउट टू इंटरमीडियरी, ही कैन हेल्प यू इन सेलेक्टिंग और आइडेंटिफाइंग फंड। As a student, I think best way to invest is to kind of invest in diversified funds like mutual funds, because they can grow over a period of time and come back to your rescue, and also give you some real financing lessons to that extent. एक क्वेश्चन है अबाउट पोर्टफोलियो का। टिपिकली म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे तो मिनिमम अमाउंट्स आर वेरी लेस, ₹250 ऑनवर्ड्स आई थिंक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीएमएस का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख आई थिंक एज पर सेबी गाइडलाइंस है, और एआईएफ का इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1 करोड़ है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर आदमी को म्यूचुअल फंड करना है या पीएमएस करना है, एआईएफ करना है। टिपिकली लोग किसी भी प्रोडक्ट में अपने पोर्टफोलियो का 10% 15% से ज्यादा नहीं डालते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। तो यदि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं 10% म्यूचुअल फंड में डालूंगा, 10% एआईएफ में डालूंगा, 10% पीएमएस में डालूंगा। लेकिन ये आपके पास 1 ही करोड़ रुपए हैं, तो शायद आपके लिए वो डिसीजन मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपना कॉर्पस देखिए, और अपने कॉर्पस के साथ डाइवर्सिफिकेशन देखिए। जैसे एक पुरानी कहावत है कि वी डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इसी तरह अपने सारे इन्वेस्टमेंट एक जगह मत करिए, इनको अलग अलग डाइवर्सिफाई करके रखिए, एंड इफ रिक्वायर्ड टेक हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू दैट एक्सटेंट। दूसरा क्वेश्चन है, कैन आई बिकम द रिचेस्ट पर्सन विदाउट इन्वेस्टमेंट? 100% यू कैन बिकम द रिचेस्ट पर्सन विदाउट इन्वेस्टमेंट। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट, यू जस्ट हैव टू सेव, एंड एज लॉन्ग द सेविंग इज effectively utilized towards good channels, you'll automatically become rich. सो जो पुरानी कहावत, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, यस पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बट पेड़ आप लगा सकते हैं जिसके ऊपर पैसे उगेंगे। आर सेविंग इन्वेस्टमेंट बोथ सेम? यस, सेविंग इज फर्स्ट पार्ट, आप पहले पैसा बचाएंगे और पैसा बचाने के बाद उसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सेविंग फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज जो है वो इन्वेस्टमेंट है।
एक क्वेश्चन है फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में. अगेन दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज जो कि सेबी द्वारा निर्धारित म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के अंदर है. इसमें मल्टीपल कैटेगरीज है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. हर कैटेगरी का एक पर्टिकुलर फंक्शन है कि ये इस तरह के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, इस तरह के स्टॉक्स में नहीं कर सकते. एंड दैट डिफरेंस यू कैन फाइंड आउट ऑन ईच फंड्स वेबसाइट. रियल एस्टेट के बारे में एक क्वेश्चन है. अगेन रियल एस्टेट डिपेंडिंग ऑन आपका कितना बड़ा पोर्टफोलियो है और क्या आप करना चाहते हैं. पहला घर ऑब्वियसली जरूरत होता है, दूसरा आपकी चॉइस होता है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट, जैसे मैंने आपको बोला कि यदि आप देख रहे हैं कि 10% के हिसाब से 14 सालों में, 14.5 सालों में आपका नंबर जो है वो 4 गुना हो जाना चाहिए. तो क्या रियल एस्टेट आपको 14 सालों में 4 गुना रिटर्न देगा? अज्यूमिंग 10% रिटर्न के साथ मैं कंपेयर करूंगा. तो यदि वो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको लगता है कि आपको रिटर्न मिलेगा, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और आप अपने रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से आगे इन्वेस्ट का डिसीजन ले सकते हैं. Appreciating, depreciating is a question. Some assets like real estate, gold, silver, equity are appreciating. Things which are like car or some of the other things, phones are depreciating. Um, how to invest in securities market project? Yes, you can reach out to some of these players, which is mutual fund, PMS, AIF. Look at their website. Most of them have details about the product on their website, and then you can reach out to them for investing. What is the right age of investing? Well, the right age of investing is today. The last right age was yesterday, and the next right age is today. So आज ही वो आपका दिन है जब आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए. बेस्ट प्लेटफॉर्म टू यूज फॉर SIP, अगेन डिपेंडिंग ऑन यूसेज, आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, किस शहर में आप. देयर आर लॉट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर सॉर्ट ऑफ SIPs टू दैट एक्सटेंट. शुड वी इन्वेस्ट एज अ फ्रेशर टू गेट मैक्सिमम रिटर्न? आई थिंक जैसे मैंने कहा, यदि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो डिवर्सिफाइड फंड के साथ जाइए जो कि रिटेल फोकस्ड है टू दैट एक्सटेंट. Is REITs a good option for real estate investment? REIT is a very new product in India. It allows you fractional ownership. I think REITs में currently सिर्फ commercial real estate है, and depending on what your risk appetite is, आप देख सकते हैं कि आपको REITs में invest sort of करना है कि नहीं करना है. Question about flexi cap fund. Again, डिपेंडिंग ऑन आपका गोल क्या है जिसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप चूज कर सकते हैं. इज इट बेटर टू पे ऑफ लोन्स अर्ली और इन्वेस्ट दैट मनी? सी इट डिपेंड्स ऑन योर दिस थिंग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया कि जब मुझसे वो पैसे मांगने आया तो मैं भाग गया, तो आई कांट कीप लोन्स, सो आई टिपिकली पे माई लोन्स अर्ली. बट इट्स इंडिविजुअल चॉइस और रिलेशनशिप विद मनी विच यू हैव टू डिफाइन. एक क्वेश्चन है SIP SWP के बारे में. SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. SWP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान. तो इन्वेस्टमेंट प्लान में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, विड्रॉल प्लान में आप विड्रॉ कर रहे हैं टू दैट एक्सटेंट. अबाउट प्लेटफॉर्म्स टू इन्वेस्ट, दीज आर सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म. आप इंक्वायरी कर सकते हैं, एंड अगेन यू विल फाइंड आउट विच प्लेटफॉर्म is sort of good to invest to that extent. If there are more questions, please put in on the chat box and I can take them. Thank you so much, NISM team, for this valuable support and all the questions. Rasmeet, over to you. Actually, ma'am is busy. Sure. So I want to thank you. That would like to extend our heartfelt thanks, sir, for taking time and speaking at the webinar. Your Thank you. expertise and presentation as well truly made a lasting impact on our audience. Thank you. Thank you again for Thank you, sharing your Sahil. time Thank and you, knowledge. everyone. Yeah. Thank you to participants as well for joining us today. Your Thank you. presence and engagement truly made the session meaningful and effective. Yeah. Thank you all. Thank you for joining us today.